The goal is to keep our heart childlike till our last breath. और उद्देश्य है कि अपने दिल को एक बच्चे के समान बना के रखे अपनी आखिरी सांस Because when we live in this world where there are offenses and betrayals and tribulations and sicknesses and heartaches, what happens? The tendency is that it makes our heart go hard. जब हम इस दुनिया में जीते हैं, नाराजगी, ठोकरें, कड़वाहट, धोखा, ये सारी चीजें के कारण हमारा दिल कठोर हो जाता है. And a hard heart cannot experience God. और एक कठोर हृदय परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकता. Pharaoh did not respond to God because the Bible tells his heart was hardened. फिरौन ने परमेश्वर की बात को जवाब नहीं दिया क्योंकि बाइबल बताती है उसका दिल कठोर हो गया था. Amen. So ये मेरी प्रार्थना है, चाहे हमें कितना भी आता हो. So this is my prayer, no matter how much we know. हर बार जब हम अपने पिता की उपस्थिति में जाएं, हम एक छोटे बच्चे की तरह जाएं और हम कहें, पिता हमें सिखा. Every time we go into our Father's presence, we go like a small child and we say, Father, teach me. क्योंकि नम्रता का सबसे बड़ा जो चिन्ह है, humility, the biggest sign of humility is that you will be teachable. नम्रता का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा चिन्ह है कि आप सीखने के लिए इच्छुक होंगे. But the proud, they say, I know it all. I've heard this. I know it. लेकिन जो घमंडी हैं, जो अहंकारी हैं, वो कहते हैं मुझे सब पता है, मैंने ये सुना हुआ है, मुझे सब आता है. और मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो वचन है, जो वचन हमें बताता है, परमेश्वर उसी एक आयत से, उसी एक स्क्रिप्चर से आपको 1 करोड़ बार नई चीजें सिखा सकता है, क्योंकि वो वचन जीवित वचन है. Because what we know from that, God can teach us billions of times because that word is alive. Amen. So let's just approach the word with excitement, with awe and wonder, like little kids have. तो हम वचन के सामने एक छोटे बच्चे की तरह, रहस्य की तरह उसको देखने के लिए आ जाएं. Amen. So we say, God, we don't want to lose our wonder. We don't want to lose our adoration for you. हम अपनी सराहना, अपना जो रहस्य आपके बारे में, उसको खोना नहीं चाहते. Amen. So आज मैं आपके साथ थोड़ा सा चीजें बताऊंगा क्रॉस के बारे में. I know you have heard these truths, but through a different angle. I'll share some other things about the cross with you. I know you've heard them, but I'll share them from a different angle. But I pray that you will get that excitement and wonder back for the word of the living God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको उत्साह और वो रहस्य उस अद्भुत वचन के लिए वापस पाएं. Amen. यही है अंतर एक ईसाई में और एक प्रेमी में. This is the difference between a religious Christian and a lover of God. Amen. Hallelujah. कई लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं ईसाई कहता हूँ. Many people get very offended when I say religious Christians. मगर कई बारी अगर आपको किसी को लाना है कहीं से बाहर, तो थोड़ा उन्हें हिलाना पड़ता है. But sometimes to bring some people out of something, you'll have to shake them. You have to move them. So today you see a lot of emotions in many traditional places. Lot of crying, lot of wailing. Today is Good Friday. बहुत से रीति रिवाज वाली जगहों पर आपको आज बहुत रोना धोना, बहुत विलाप करना मिलेगा. अरे आज तो गुड फ्राइडे है. And even though there is lot of emotion, people lack revelation. और हालांकि भावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रकाशन की बहुत कमी है. And because they lack revelation, और क्योंकि प्रकाशन की कमी है, they cry every year. वो हर साल रोते रहते हैं. अरे आगे नहीं पढ़ी क्या बाइबल? Did you not read the Bible further? आगे कुछ और हुआ था. Something happened afterwards. Amen. So today's service is not a funeral service, it is the victory service. आज की सभा फ्यूनरल की सभा नहीं है, ये जय की सभा है. हालेलुया. ये रोने की सर्विस नहीं है, ये जय मनाने की सर्विस है. This is not a weeping service, this is a victorious service. Hallelujah. Amen. Now it looks like FOLJ. अब लग रहा है कि FOLJ. All right.
but also we will learn the gravity of what Jesus went through. पर साथ ही जो यीशु ने सहा हमारे लिए उसकी गंभीरता कि को भी हम ताकि हम सीखेंगे। कभी भी उस चीज को हल्का ना जानने लग जाएं, क्योंकि you see, you have heard songs on cross, you have seen the movie, you have seen crucifixion, you have seen crosses on houses, and some people even wear crosses, so we get used to it. So that we never start to take it lightly. कई लोग के घर पे क्रूस होता है, कुछ लोग क्रूस पहनते हैं और हमने मूवीज देखी हैं तो उसको हम हल्का ना समझें। So I want to tell you that what cross meant in the time of Lord Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समय में क्रूस का क्या अर्थ था। Crucifixion was horrendous, not just because it was one of the forms of execution. क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाना घृणा के योग्य था, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर लोगों को मारा जाता था। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो आपको समझ में आए। क्रॉस एक वो तरीका डिजाइन किया गया था, अगर आपको किसी व्यक्ति को पूरी रीति से डिस्ट्रॉय करना है। क्रॉस वाज अ वे डिजाइन्ड इफ यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय समवन कंप्लीटली। और अगर किसी व्यक्ति से आपको जो बोलते हैं ना बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाली बात है, तो कैसे एक व्यक्ति को मारा जाए जो ना केवल इसको दर्द हो मगर सोशली हर एक तरीके से इसको वर्स्ट, ये एक एक सांस दर्द, एक्सट्रीम दर्द सहता सहता शर्मनाक जो मृत्यु है वो क्रूस है। And if you hated somebody and you wanted to pay back, the worst way to kill someone was on the cross, when they would gasp for every single breath until they die. Okay, let me say it this way. It was designed by the Roman Empire to be the most humiliating, रोमी साम्राज्य ने इसको बनाया था सबसे शर्मनाक तरीके से मारने torturous, के लिए, सताव के साथ, slow and shame-filled death imaginable. धीमी और शर्म से भरी हुई मृत्यु जिसकी कल्पना कोई कर सकता है। It was not just meant to kill a person, it was meant to destroy a person. ये एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं थी सिर्फ, ये उसको पूरी तरह से नाश कर देने के लिए थी। Physically, mentally, emotionally and socially. शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। And let me tell you why. और बताता हूँ क्यों। First, cross is one of the most painful forms of death. क्रूस जो है वो मृत्यु के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक है। It was slow and agonizing. धीमी और दर्द से भरी हुई। कई बारी कई जो लोग थे उनको बहुत घंटे लग जाते थे, और the pain was extreme to even take every breath. So they were dying with every breath, every breath. Every breath was so difficult to take. Some people would take hours to die, and और हर एक सांस ऐसी लगती थी जैसे अब मर रहे हैं, हर एक सांस मरने जैसी होती थी। Okay, अब मैं biology में नहीं जाऊंगा. There is a lot of explanation that because the hands and feet were nailed. I will not go into biology क्योंकि उसमें हाथ और पाँव में कील लगाई जाती थी। So it used to cause unbearing pain in nerves. तो नसों में असहनीय दर्द होता था। Okay, and I'm sure you would have seen videos of it. आपने वीडियोस देखे होंगे। So क्रूस की जो मृत्यु थी वो इंच बाय इंच हर सांस में मरना था। Death of the cross was inch by inch, dying breath after breath. Okay, and then we'll understand this great love with which God has loved us. तब हम समझ पाएंगे उस महान प्रेम को जिससे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। He didn't just say it, उसने सिर्फ बोला नहीं, he demonstrated it. उसने सबूत के साथ साबित करके Okay, दिखाया। so second point, it was public and purposefully shameful. ये लोगों के सामने और जानबूझ के शर्मनाक तरीके से बनाया गया। क्रूसिफिक्शन जो पब्लिक जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे किया जाता था। Crucifixion was done in a place where there's most amount of crowd. आज किसी को फांसी लगती है, जब किसी कैदी को, तो किसी को पता नहीं चलता, एक बंद कमरे में उसको फांसी लगा दे। क्रूस ऐसा नहीं था। क्रूस केवल मृत्यु देना नहीं था, क्रूस एक शर्मनाक मृत्यु देना था सब लोगों के सामने। Today when someone is hanged till death, it's done in a closed room, but cross was done publicly before everyone, just to embarrass them.
जिस व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उसको बिल्कुल नंगा कर दिया जाता था सब लोगों के सामने। आप कई बारी आपने कैथोलिक चर्चेस में या कहीं पे आपने देखा होगा क्रूस में यीशु मसीह, और आपने देखा होगा एक कपड़ा लपेटा हुआ है, कोई कपड़ा नहीं था। The person who was on the cross was made completely naked. In Catholic churches, you will find this cross where Jesus on the cross and there's a cloth wrapped around him. There should be no cloth. मैं चाहता हूँ आप इमेजिन करो, I want you to imagine वो परमेश्वर the God जो ज्योति को लपेटे रखता है, who is wrapped around with light. उसको नंगा कर दिया गया They made him naked आपके और मेरे लिए। for you and for me. आज शैतान ने हमें इतना बड़ा झूठ दे दिया कि ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में। Today, the devil has given us such a big lie that it's about the आप कभी religion of सोचते हो ये Christianity. क्यों बंदा इतना अगेंस्ट बोलता है, ये ईसाई क्यों बोलता है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कम अगेंस्ट दैट स्पिरिट ऑफ रिलीजन दैट ट्राइज टू मास्क द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह ईसाइयत से बहुत अलग है। You would be wondering why I speak so much against the religion, because Jesus is so much different from the religion. आमीन। आप सोच सकते हो वो शर्म, Can you imagine the embarrassment? कि वो व्यक्ति जिसका लोग आदर करते थे, जो हर कोई उसको नहीं जानता था कि वो परमेश्वर है जो दे धर कर आ गया, मगर फिर भी बहुत सारे लोग, उसने इतने लोगों को चंगा किया, इतनी अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, एक गुरु के रूप में लोग उसे जानते थे। और अब वही गुरु जिसके पीछे हजारों लाखों की भीड़ जा रही थी, वो एक पब्लिक जगह में नंगा टांगा गया है सबके सामने। The same person who was so honored and respected because he had healed so many people, given blind eyes, thousands of people were following him, and now the same person is hung naked on the cross. क्रूस की जो सजा थी वो वर्स्ट जो सिनर्स थे, जो बिल्कुल जो वर्स्ट होते हैं, जो श्रापित माने जाते थे, उनको दी जाती थी, और रोमी के जो लोग थे, जो सिटीजन्स थे, उनके लिए नहीं थी। The punishment of the cross was kept for the worst sinners, and it was not to be given to any Roman citizen. केवल कुछ रोम के लोग थे जिन्होंने बहुत ही क्राइम करा था वहां की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उनको यह दिया गया, मगर मेजॉरिटी क्रॉस की जो सजा थी वो रोम के जो लोग थे उनके लिए नहीं थी। Maybe very few Romans who did some crime against the government, but generally this was not for the people of Rome, the citizens of Rome. Amen. और